Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all will be fine and in the best of your health. Last week we had started with the farewell sermon by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So as the lesson was complete, its exercise, its study questions, that is done. Many of you had submitted the assignment, but many of you still failed to submit the assignment. So I'm waiting for their assignment, for their response, because students, as you all know, this time is very important, as it is the time when you people are all free from your academies, from your school, from your routine. So what you people have to do, how you people will utilize this time period without any tension. You can make use of your time. So it is better to concentrate on the work assigned to you people. So today we are going to start with the study language. Parts of speech, people are familiar with this term from the very beginning of your education, from class 1 to we start teaching to our students parts of speech one by one. So what you can see over here, you can see 8 parts of speech over here. अब parts of speech किस तरह से हम classify करते हैं? Actually, there is no single word in English that is without a name. हर word, हर लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, उसका कोई ना कोई नाम है according to their use, according to their function they do in a sentence, right? एक ही लफ्ज़ जो है वो एक सेंटेंस में या डिफरेंट सेंटेंसेस में इट वर्क्स डिफरेंटली, तो उसका नाम भी मुख्तलिफ होगा, राइट? जैसे आप हैं, आपका एक नाम है लाइक आयज़ा. So Aiza is a student at school. Aiza is a daughter at home. Aiza, like when she becomes a doctor, तो फिर वहाँ पे उस प्रोफेशन में she would be a doctor. So different जगहों पे जब जो according to their function, according to your work, आप जो हैं वो अपने different नाम जो हैं वो आपको दिए जाते हैं. So same thing is happening with the words in the sentence. सबसे पहले हम देखते हैं कि noun क्या होता है, what the noun is. अब noun is a word used as the name of a person, place or a thing. किसी भी आपके इर्द गिर्द, when you look around yourself, into your surrounding, what you can see over there, number of the things around you. आपके हाथ में पेन है, आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने वर्कशीट है, आपके सामने फ़ैन है, लॉट ऑफ थिंग्स इन योर सराउंडिंग. सो ये सब चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, दे हैव सम नेम. सो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, लोगों के अपने अपने नाम हैं. आप जहाँ पे बैठे हैं, दैट इज़ योर रूम. आप किचन में हैं, आप कमरे में बैठे हुए हैं, दिस इज़ द प्लेस. लाउंज में हैं, आप अपने बैकयार्ड में हैं, लॉन में हैं. सो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस और थिंग्स जो कि मैंने आपको कहा कि हर जो इर्द गिर्द आपके पास मौजूद इर्द गिर्द चीज़ है, इट हैज़ सम नेम. और ये नाम सारे के सारे क्या कहलाएंगे? दीज विल बी कॉल्ड नाउन. ठीक है? हर वो चीज़, हर वो बंदा, हर वो जगह जिसका नाम है, दैट इज़ नाउन. और हर चीज़ को हम बंदों ने नाम दिया हुआ है. सो हियर आई हैव हाईलाइटेड द एग्जाम्पल्स. अकबर इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. ही वॉज अ ग्रेट किंग. लाहौर इज़ ऑन द रावी. The rose smells sweet. The sun shines brightly. His courage won him honor. These are different examples जिसमें दूसरे लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन हमारा चूँकि बेसिकली फोकस किस पे है? नाउन पे है. सो आई हैव हाईलाइटेड नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस. ठीक है? आप यहाँ देखें कि अकबर नाम है, किंग जो है वो किसी बंदे के लिए हम ये लफ्ज़ एज अ नेम इस्तेमाल करते हैं. लाहौर है, प्लेस है, रावी क्या है? प्लेस है. रोज़ क्या है? दिस इज़ अ थिंग. सन इज़ अ थिंग. करेज क्या है? ये दिस वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनर क्या है? दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन हम डेफिनेटली इनको पढ़ेंगे वन बाय वन. बेसिकली वी मस्ट नो व्हाट द नाउन इज़. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमें पहले फेमिलियर होना है कि अगर हम सेंटेंस में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता हो कि व्हाट द नाउन इज़.
right? So in these sentences you can easily identify noun. Let's move to the next one. The word thing include all objects that we can see, hear, taste, touch or smell. आपकी जो जितनी भी आपकी सेंसेस हैं, जिन चीज़ों को, जिन ऑब्जेक्ट्स को जो वो आइडेंटिफाई कर लेंगी, वो दीज विल बी कॉल्ड थिंग्स. और समथिंग दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव द that we can think of but cannot perceive the senses. और कुछ nouns ऐसे होते हैं कि जो कि exist तो करते हैं लेकिन आपके जो ये जो senses हैं उनसे beyond होते हैं. जैसे idea है, जैसे आपका कोई emotion है, जैसे courage और honor की हमने बात की है, तो वो भी क्या है? These are also known as noun. Okay. Now second one is adjective. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. अब हमने क्या पढ़ा? हमने एक नाउन के बारे में पढ़ लिया कि किसी भी चीज़ का नाम, शख्स का नाम, जगह का नाम नाउन कहलाता है. अब उस नाउन की साथ कोई वर्ड हम लगा दें जो कि नाउन की मीनिंग में ऐड करे तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. बॉय क्या है? दैट इज़ नाउन. इस बॉय के साथ हमने वर्ड ब्रेव लगा दिया है, दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ बॉय. उसने बॉय की मीनिंग को ऐड अप कर दिया उसमें कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय. सो ब्रेव वुड बिकम एन एडजेक्टिव. अभी इस तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास. अब नाउन आइडेंटिफाई करें पहले सेंटेंस में कि वे द नाउन इज़. यस, आपको नाउन कहाँ मिल रहा है? बॉयज़ क्लास. ये दो आपको नाउन सेंटेंस में मिल रहे हैं. बॉयज़ के साथ देखें, द वर्ड 20 इज़ एडेड. नंबर ऑफ द बॉयज़ इज़ टोल्ड. सो 20 विल बी एन एडजेक्टिव क्योंकि 20 जो है वो बॉयज़ में एडअप होके उनके नंबर को क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है. इसी तरह से क्लास जो है एक्सक्यूज़ मी, क्लास जो है वो क्या है? दैट इज़ अ नाउन. और दिस जो है वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ क्लास. सो दिस वन विल बी अ एडजेक्टिव. इसी तरह से नेक्स्ट पे मूव करें. थर्ड वन इज़ अ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन एज वी आर फेमिलियर विद दिस टर्म कि नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हम उसको प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि सेंटेंस में हम रेपिटेशन, नेम की रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं और उस नाम को दोबारा इस्तेमाल करने की जगह की बजाय हम वहाँ पे उस जगह पे नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. जैसे असलम इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम. अब यहाँ पे क्या है? असलम का लफ्ज़ जो है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ. असलम इज़ एब्सेंट बिकॉज असलम इज़ इल ये नहीं कहा गया बल्कि असलम की जगह पे ही का इस्तेमाल किया गया. सो ही इज़ अ प्रोनाउन एज इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में देखें, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम. अब यू जो है वो लाइक आयज़ा की जगह इस्तेमाल हुआ है, आयमा की जगह इस्तेमाल हुआ है, माइदा की जगह इस्तेमाल हुआ है. सो जो है जब नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ तो दिस वन विल बी अ प्रोनाउन. एंड लेफ्ट देम किसके लिए इस्तेमाल हुआ? बुक्स के लिए इस्तेमाल हुआ. सो दीज आर द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ वर्ब. वर्ब क्या होता है? ये एक्शन को शो करता है, सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है. दैट इज़ अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. जो पर्सन है या थिंग है वो हमेशा सब्जेक्ट प्लेस पे होता है और उसके बारे में जो लफ्ज़ हमें बताए कि वो जो पर्सन है या जो थिंग है वो क्या कर रहा है, क्या जो है उसका फंक्शन है, तो वो चीज़ हमें वर्ब के बारे में बताती है. Verb is basically tell us about an action of a subject. It tells about the state of the subject. हमें पता चलता है कि वो present state में है, past state में है. So, for example, I can make it clear. The girl wrote a letter to her cousin. अब यहाँ पे ये देखें कि भी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है अमूमन वर्ब आता है और जो है that tells you about the action of a girl. गर्ल क्या कर रही है? शी इज़ राइटिंग अ लेटर, राइट. ये एक एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है दैट टेल्स यू अबाउट अ
about that subject. आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स. यहाँ पे क्या है, आयरन एंड कॉपर जो है, दीज आर द थिंग्स एंड आर यूज़फुल मेटल्स. ये उसकी जो है वो उसको कंबाइन करने के लिए दिस इज़ काइंड ऑफ अ लिंकिंग वर्ब. और जो है वो दो जो है वो लफ्ज़ों को उसके जो है वो प्रेडिकेट के साथ जो है लिंक अप कर रही है. पेशावर इज़ अ बिग टाउन. सो दिस वन इज़ अगेन an action verb. So next one is adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or an other verb. Adverb. So adverb जो है वो 3 तरह से काम कर रहा होता है. क्या है कि ये किसी वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, ये किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करता है, या ये किसी और एडवर्ब के मीनिंग में ऐड अप करता है. अब ऐड क्या कर रहा है, लाइक ही वर्क द सम क्विकली. वर्किंग है, काम हो रहा है, और वो काम कैसे हो रहा है, क्विकली हो रहा है. सो हेयर क्विकली एडेड टू द वर्ब, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. Similarly, this flower is very beautiful. Over here, beautiful, that is an adjective, and very क्या है, this one is an adverb, right? क्योंकि दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव इज़ यूज्ड ओवर हियर. फ्लावर के बारे में है, उसमें एडअप कर रहा है कि फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, और उसके साथ क्या है, वेरी जो है दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव. शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली. अब यहाँ पे क्या है, करेक्टली, LY अमूमन एडवर्ब्स के एंड पे आता है. करेक्टली प्रोनाउंस हुआ है, करेक्टली, और क्वाइट जो है वो करेक्टली में ऐड हो रहा है कि काफ़ी उसने वाज़ेह अंदाज में वर्ड को प्रोनाउंस किया है. सो जो एडवर्ब्स होते हैं वो ना सिर्फ ये कि वर्ब के मीनिंग को क्लियर करते हैं, उसमें एडअप करते हैं, बल्कि किसी दूसरे एडवर्ब में भी एडअप करते हैं, और एडजेक्टिव के मीनिंग को भी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. Then we have a preposition. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show the person or a thing denoted by noun or pronoun stand in relation to something else. अमूमन preposition को मैं किस तरह से समझाती हूँ कि preposition has some place. It can be bifurcated into two parts, that is pre and position. Pre means before and position means its place. So its place is before noun. Its position is always before noun. जो preposition है वो हमेशा हम noun से पहले इस्तेमाल करते हैं. Right, in the examples you can see garden है, music है, tree है, उससे पहले highlighted words in, of and under है. So preposition क्या है, is a word used with a noun or a pronoun to show the person or a thing denoted by a noun or a pronoun stands in relation to something else. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे in example 1 there is a cow in the garden. cow noun को किससे जो है वो ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, preposition noun को noun से, right? So you can see that cow is a noun and garden is a noun. Both are joined together with the help of a preposition in. So in is a preposition, or in is used before noun. The girl is fond of music. अब fond जो है वो that is an adjective and music is a noun. So adjectives are also linked with the help of preposition to a noun. And similarly, a fair little girl sat under a tree. This verb is linked or joined with a tree with the help of a preposition. Then we have conjunction. It is again a word used to join words or sentences together. Joining word होता है. So Javed and Javeria are cousins and is joining the two words together. 2 and 2 make 4. 2 and 2 are joined together with the help of and. I ran fast but missed the train. These two clauses are joined together with the help of but. So conjunction is a joining word that joins two sentences together or two words together. Then we have interjection. This is the last parts of speech. Interjection क्या होता है? This is a word which expresses
सडन फीलिंग्स, आप एकदम से एक्साइटेड हैं किसी गेम के बारे में, किसी मैच के बारे में, एंड यू आर pronounce or you are uttering the words which doesn't have some meaning but it expresses your emotion. So, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे hurrah, las, these words do not exist. These words are the voices which are uttered from the mouth in when you people are in state of some excitement or you are so emotional. So hurrah, we have won the game. Hurrah is an interjection that expresses your emotion of excitement. Alas, he is dead. Alas shows the emotions of sorrow. सो ये जो अंग्रेज़ है बहुत कनिंग एंड शार्प है, उसने हर लफ्ज़ के लिए जो कुछ भी है उसको उसने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया हुआ है. तो इंटरजेक्शंस जो हैं ये मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये चूँकि अटैच होते हैं विद इमोशंस तो हम उन इमोशंस के थ्रू जो है वी गिव मीनिंग टू दीज वर्ड्स. ओके, अब यहाँ पे जो बात यहाँ पे मैंने कहने की कोशिश की है कि एक ही लफ्ज़, जैसे यू कैन सी ओवर हियर आफ्टर इज़ हाईलाइटेड, एक ही लफ्ज़ जो है वो सेंटेंस में एज इट इज़ यूज्ड, इट इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन दैट वर्ड इज़ नेम्ड. अब यहाँ पे देखें दे अराइव्ड सून आफ्टर. अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब. दे अराइव्ड आफ्टर अस. It is used to link the verb with pronoun, so it is a preposition. Then they arrived after we had left. Over here after is used as a conjunction. So हम क्या कह रहे हैं कि from these examples you can see that same word can be used as different parts of speech. तो एक नाम का कोई एक स्पेसिफिक हम जो है वो किसी भी वर्ड को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते कि आफ्टर है तो वो हमेशा कंजंक्शन ही यूज़ होगा. नहीं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लफ्ज़ जिस तरह से इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में उसके मुताबिक उसको नाम दिया जाता है. जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने आफ्टर को जो है वो 3 मुख्तलिफ नाम दिए अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस. यू कैन सी द एक्सरसाइज ओवर हियर. इस एक्सरसाइज में द वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि आप जो है यू हैव टू लाइक आंसर इट दैट दीज वर्ड्स आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस और समथिंग एल्स. आपने पहले इसको एज वी हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू पीपल फॉर योर कन्वीनियंस, बट don't look into the answer into that line. आपने क्या करना है, you have to assess yourself either you still know about these things or not. आपने देखें फर्स्ट वन में still water run deep, still water run deep. अब वाटर की उसने क्या बता दी हुई है, क्वालिटी बता दी हुई है कि वो still water है. तो वाटर इज़ अ नाउन, नाउन के साथ जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन कि वो किस तरह का वाटर है. ही स्टिल लिव्स इन द हाउस क्या है, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. स्टिल जो है वो मीनिंग ऑफ अ वर्ब में एडअप हो रहा है, तो क्या है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम. अब नाउन से पहले आफ्टर इस्तेमाल हो रहा है तो इट इज़ अ प्रपोजिशन. The after effects of the drug are bad. Effect is used as a noun. और noun के साथ after use हो रहा है as an adjective. So similarly, the up train is late. It weighs about a pound. He told us all about the battle. You can see in all these sentences, up train again used as an adjective. About a pound. नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, प्रपोजिशन है. टोल्ड अस अबाउट द बैटल, नाउन से पहले यूज़ हो रहा है, सो इट विल बी अ प्रपोजिशन. सो सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी दैट इज़ ऑल डन. आपके लिए कर दिया गया है कि भी ये क्या है, कंजंक्शन है, वर्ब एडवर्ब है, फॉर योर क्लैरिटी. लेकिन आपने क्या करना है, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. और उसके बाद फिर अपने आप को असेस करिएगा कि आइदर यू ऑल नो अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच और नॉट. आपको उसकी समझ में आई है, नहीं आई है.
और उसके बाद फिर फर्दर जो है वन बाय वन हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वी विल डू इट फॉर यू एज दिस ग्रामर दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट एज वेल. सो हम जो है वो कल इंशाल्लाह नाउन को जो है वो फर्दर करेंगे, उसको डिटेल में करेंगे. Today you will understand, you will get the concept of parts of speech. उसके बाद फिर कुछ देर में मैं आप लोगों को अपलोड करूँगी एक वर्कशीट that you people have to solve and you have to send it to me today during that time period. Thank you very much. Stay safe and stay blessed.